गुड इवनिंग साथियों। और यू एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नए टॉपिक के साथ। तो द टॉपिक इज काइजन। काइजन, व्हाट इज काइजन? मे बी who does not aware about the kaizen, so it will be new for them, so they will get to know what is kaizen. So basically kaizen, uh, it has made adding the two words. So the first word is kai and another word is jan. Kai means change or revision. Zen means virtue or goodness. So when we combine these two words, so we can say change for better or change for goodness or revision for goodness. मतलब जो जैसी ये पहले स्थिति थी उससे कुछ अच्छा, कुछ बेटर, राइट। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। बने रहिए, देखते रहिए। और इंटरेस्टिंग, केवल काइजन ही डिस्कस नहीं करूंगा मैं इसमें। दो और नई टर्म्स हैं, मे भी बहुत से लोग उससे अवेयर नहीं होंगे, जो न्यू मेथडोलॉजी है, जो काइजन के बाद एड ऑन हुई, जिसके बारे में काफी लोग जानते भी नहीं है। तो जुड़े रहिए, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन। सो इन एक्चुअली फर्स्ट वी गेट टू नो कि from where we get the origin for this. So in 1986, Masaki Imai introduced the Western world the Japanese term Kaizen. So Masaki Imai एक थे, जापानीज थे, 1986 में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो what was the Kaizen? Basically is an approach to creating continuous improvement based on the idea that a small ongoing positive change can help the significant improvement. Basically कोई भी छोटे से छोटा स्मॉल स्मॉल इम्प्रूवमेंट कैन मेक अ बिग इम्पैक्ट in society, in system, in manufacturing process, everywhere. It is not limited to the manufacturing industry only. Kaizen you can do anywhere, everywhere, any place, and it can be a change, नॉट अलाइक कि कोई बड़ा चेंज आप लोग करने जा रहे हो, कि स्मॉल चेंज जिसका कुछ इम्पैक्ट हो पॉजिटिव और जिससे आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा हो, ऐसा चेंज जिससे आपकी लाइफ में, आप जो जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ, एनवायरमेंट में, प्रोसेस में, कहीं भी अगर कुछ चेंज आ रहा है, कुछ आपके इम्प्रूवमेंट करने से, कुछ अमेंडमेंट करने से जो एग्जिस्टिंग में चल रहा है, तो कर दो। और उसको वेट मत करो कि कुछ बड़ा करेंगे, इससे छोटे से इम्पैक्ट नहीं आएगा, राइट। तो अगर मैं बात करूं जो इंडस्ट्री में, तो काइजन basically there are numerous names associated with kaizen. That is kaizen event, including the kaizen blitz, kaizen bursts, kaizen workshop, focused improvement workshop, continuous improvement workshop, and rapid process workshop. So it is not only ki uh, kaizen, maybe few people said ki kaizen event we are doing, maybe few people will say kaizen blitz, few people say kaizen burst. So everything is same. Main cancer concept is kaizen, right? प्रोसेस टू प्रोसेस में भी, पीपल टू पीपल उसको डिफरेंट डिफरेंट नेम से प्रोनाउंस करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो अभी हम अब बात कर रहे हैं कि काइजन आखिर है क्या, क्या भला क्या है ये काइजन। तो इसमें वी विल सी द रियल लाइफ एग्जांपल, और वो भी प्रोडक्ट पे। क्या प्रोडक्ट पे जो मैं एग्जांपल दिखाऊंगा उसी से कोरिलेट कर सकते हो। सेम इसी तरीके के काइजन we do in manufacturing process, and we do in system and back end operation as well. So everywhere in office area as well, we do this kind of kaizens. So what is it? We see the real life example. So one example I have taken workshop. Even though this kind of example you may saw in the Pokayoke training session which I given you last week. जो नए आए हैं वो लोग जाके चैनल पे देख सकते हैं। तो in before kaizen you can see the condition cannot manage the stationary of the tools, right? Tools are spread on the floor here and there, and where the things are getting messy, right?
But when we do the 5S here, you see everything is well aligned. So what is it? It is a Kaizen. So you can see the difference easily. Now implementation of the management board is good after Kaizen. फिर एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं एक ऐसा दे दूंगा जो लोग रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं. What happened in 2000 or in 90s basically, small farmer, mostly farmer used this kind of hull to plowing their field, right? So in this agriculture industry, Kaizen done basically. It's so now technology involved in that, and now the which work was going on with the ox and manual wooden cultivator kind. So now it has been turned into the with the technology. So ये भी एक kind of काइजन है कि पहले हम अपना जो खेत था उसको उसकी जुताई करते थे हल से बैलों के साथ, तो उसमें हमारा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता था, इफिशियंसी नहीं निकलती थी, ठीक है, और हार्ड वर्क बहुत ज्यादा होता था जो हमारा फार्मर होता था, और जो हमारी ईल्ड थी क्रॉप की वो भी हमारी अच्छी नहीं थी. फिर जब से इस इंडस्ट्री में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में ट्रैक्टर और जो आपका ये कल्टीवेटर पीछे ट्रेलर लगा हुआ है, जब से ये चीजें आई हैं तो हमारी इफिशियंसी इंक्रीज हो गई, राइट, और टाइम बहुत कम लग रहा है, मेहनत कम हो गई है, ठीक है, जुताई गोड़ाई करने में खेत की. तो ये क्या है, ये भी है काइजन है प्रोडक्ट लेवल पे, ठीक है, कि पहले हम क्या कहते हैं पुरानी पद्धति के साथ उसको फार्मिंग करते थे, अब हमने मशीन को ऐड कर दिया, तो कितने सारे बेनिफिट हुए मैंने आपको बताया. ऐसे ही एक एग्जांपल और है, अगर आप देखोगे when you go to urinate in toilets, so you saw this kind of pots are there, right? So here you can see manual tap are there. So after urinate you have to turn on this tap and flow the water. तो उसमें क्या है, वाटर की वेस्टेज ज्यादा है या जो आपकी टैप है वो लीकेज हो जाती है, तो फिर आपकी वाटर वेस्टेज ज्यादा होती है, या फिर कोई बंदा है उसने टर्न ऑन की ही नहीं, जस्ट यूरिनेट किया और देन गो बैक, तो उसमें स्मेल रहेगी, वॉशरूम में डर्टी रहेगा, राइट. अब क्या हो रहा है, जब आप व्हेन यू विल विजिट अ बिग रेस्टोरेंट और मे बी गुड hotel, right, hotel, so in this kind of places you will find, or maybe malls, so you will find this kind of advanced toilets. So what is it, what here you will observe, so here you can see this, this is a sensor, right? So when you will go to urinate in this kind of toilet, so you have not to do anything by yourself, sensor will sense automatically and flow the water. So what happen, अब डिपेंड नहीं करेगा पर्सन टू पर्सन की बंदा उसको ये टर्न ऑन कर रहा है टैप को नहीं कर रहा है, या टैप खराब हो गई तो पानी कंटिन्यू बह रहा है. तो ये क्या है, ये काइजन है. अब ये नहीं है कि इसी तरीके के सेंसर पर इसको रोक दें, मे बी आगे आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी और अपडेट हो जाएगी, कुछ और काइजन हो जाएंगे, ठीक है, तो कुछ और अच्छा ऑटोमेशन हो जाएगा इसमें. एक एग्जांपल है, everyone knows about it कि 10 year ago or maybe 15 year ago mostly families use the semi automatic machine. तो वहां पे पहले क्या होता, वॉशिंग अलग होती थी, ड्राइंग अलग होती थी, ड्रायर अलग होता था, पहले वॉश करो फिर क्लॉथ उठाओ और फिर ड्रायर में डालो, तो टाइम लगता था, राइट. और चल मशीन चल रही है हमारी रनिंग कंडीशन में, आपने लिड उठा दिया तब भी मशीन रनिंग कंडीशन में, तो एक्सीडेंट के चांसेस भी इंक्रीज होते थे और बंदे का इन्वॉल्वमेंट कंटिन्यू रहता था मशीन के साथ. फिर देन व्हाट हैपन, टाइम चेंज हुआ, काइजन किए प्रोडक्ट लेवल पे,
तो नाउ इफ you can easily see we have the advanced washing machine, that is the fully automatic machine. Now you have to put your cloth inside in a one go, and then you have to set the program according to your clothing condition, and then start the machine, and then you have not to do anything, just do other work, let machine go. तो मशीन कंटिन्यूस चलती रहेगी, यहाँ पे आपका टाइम सेव हो गया, आपका इन्वॉल्वमेंट मशीन के साथ वो कम हो गया, ठीक है, और टाइम भी आपका सेव हो गया, राइट। अब एडवांस फीचर भी आ गया, अगर मान लो किसी ने लिड ओपन कर दिया चलती मशीन को, तो मशीन रुक भी जाती है, राइट, तो ये एक्सीडेंट के चांसेस भी रिड्यूस हो गए। तो ये भी क्या है, प्रोडक्ट लेवल पे काइजन है, इंप्रूवमेंट। तो उसके हमें बेनिफिट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए क्या मिले। अब बहुत से लोग कहेंगे या आपने सेम इसी तरीके के दो एग्जांपल आपने ओकायोके में भी दिए थे। तो गाइस आई वुड लाइक टू क्लियर the things, that is Okayoke can consider as Kaizen, but Kaizen cannot consider as a Pokayoke. तो ये डिफरेंस है यहाँ पे। पोकायोके को आप काइजन कंसिडर कर सकते हो, ईच पोकायोके कैन कंसिडर एज काइजन, बट ईच काइजन कैन नॉट कंसिडर एट पोकायोके, राइट। अब जैसे इस मशीन पे, ये मशीन का क्यों लिया, क्योंकि जो इसमें चेंजेस किए गए हैं कि लिड ओपन की मशीन स्टॉप हो जाए, तो ये पोकायोके है। जो एक्सीडेंट का जो रिस्क था वो इसने एलिमिनेट कर दिया। तो अब यहाँ पोकायोके दोबारा से कम बैक टू द पॉइंट, वी विल नॉट डिस्कस अबाउट द पोकायोके। जो लोग नए हैं वो जाके वीडियो देख सकते हैं, वहां पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, राइट। तो डिफरेंस इज कि ईच पोकायोके कैन कंसिडर एज काइजन, बट each kaizen cannot consider as pokayoke. एक और एग्जांपल देखते हैं, बड़ा पॉपुलर एग्जांपल है वोटिंग का। Whoever has interest in politics, so they well known, even though who not aware about the politics, so they every know, means who is more than 18, above 18, so everyone knows about the voting system. So before 10 year or 15 year ago, what happened कि बैलेट पेपर यूज होते थे वोटिंग के लिए, राइट, मैनुअली स्टैंपिंग। तो क्या होता था, टाइम वेस्टेज होती थी, फ्रॉड के बहुत ज्यादा चांसेस रहते थे, राइट, टाइम बहुत ज्यादा लगता था, और रिसोर्स वेस्टेज बहुत ज्यादा होती थी, स्पेशली पेपर वेस्टेज बहुत ज्यादा होती थी। इसमें इतना कंप्लीट एक बड़ा पेपर आपका वेस्ट हो जाता था, स्क्रैप बहुत ज्यादा था। अब क्या हुआ, ईवीएम इंट्रोड्यूस हो गई, इससे क्या हुआ, टाइम सेव हो गया, कॉन्फिडेंशियलिटी इंक्रीज हो गई। पहले पता रहता था कि बंदे ने किस पे स्टैंप लगाई है, ठीक है, कमल पे लगाई है कि हाथ पे लगाई है। अब क्या है, मशीन में, वो मशीन आइसोलेटेड होगी एक जोन में, वहां अलग से रखी होगी, वहां पे आप जाओगे, ठीक है, और बटन प्रेस कर दोगे, कोई नो वन कैन नो कि आपने किस पे वोट दिया है। तो टाइम भी बच गया, आपकी पेपर वेस्टेज भी बच गई। एक बड़ा सा पेपर होने की जगह छोटी सी एक स्लिप आती है, निकलती है कि आपने किसको वोट दिया है वहां उसकी, ठीक है, और टाइम भी बचा आपका, इफिशिएंसी अप हो गई, राइट। और जो फॉर्जरी के केसेस होते थे कि जबरदस्ती से चीटिंग करके घपलेबाजी हो जाती थी वोट की, वो रिड्यूस हो गए। एनीवे, तो ये क्या है, काइजन है। और कुछ लोग कहेंगे कि भाई ईवीएम भी हैक हो जाती है, ये वो, तो ये पॉलिटिकल टॉपिक हो जाएगा, वी विल नॉट डिस्कस अपॉन दैट। आई हैव जस्ट कंसर्न टू कीप इट हियर टू जस्ट शो अ रियल लाइफ एग्जांपल व्हाट इज काइजन। तो आप यहाँ पे देखो, ये काइजन है, मैनुअल से हम इधर आ गए, ऑटोमेशन पे आ गए, एडवांस कर दिया, तो ये इंप्रूवमेंट कर दिया हमने, बेनिफिट मैंने आपको बताया, राइट। सो आई गेस नाउ यू have the clear understanding about the काइजन। क्या है काइजन? काइजन ऐसा चेंज जिससे आपको कोई बेनिफिट मिल रहा हो। बेनिफिट केवल कॉस्ट का नहीं होता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, और वो कुछ भी बेनिफिट जो होगा वो मे भी हो सकता है इनडायरेक्टली कॉस्ट से रिलेट हो, डायरेक्टली ना हो, बट यस, क्या हो सकते हैं वो बेनिफिट, टाइम का हो सकता है, स्पेस का हो सकता है, सेफ्टी से रिलेटेड कुछ हो सकता है, इफिशियंसी से रिलेटेड कुछ हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके के बेनिफिट होते हैं काइजन से।
काइजन की अब बात करते हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ द काइजन सिस्टम। तो बेसिकली देयर आर टू नेचर, राइट, डुअल नेचर सिस्टम it is. So what is it? Philosophy and the action plan. So what is philosophy? Developing a culture where all employees are actively engaged in the improving the company, right? तो कल्चर क्रिएट करना बहुत जरूरी है, लोग कनेक्ट करें, लोग सेल्फ मोटिवेटेड हो काइजन को करने के लिए। काइजन कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, ऐसा आई कैन से कि कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है कि वो मतलब आपने एक बार इम्प्लीमेंट कर दिया तो हो जाएगा। जब तक बंदा, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल आर नॉट सेल्फ मोटिवेटेड, टिल द टाइम यू कांट get those benefit we generally should get. So each and every should be self motivated and actively engaged in this kind of kaizen activity. So we, every company, every organization, everywhere, even though itself at your home as well, तो एक कल्चर डेवलप करना चाहिए जहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज हैं, जो मेंबर्स हैं, वो सारे के सारे उसमें एक्टिवली इंगेज हो काइजन करने के लिए। सिंगल बंदा काइजन करेगा तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा जब एक पूरी टीम मिलकर काइजन करेगी। देन टॉक अबाउट द एक्शन प्लान। तो आपने कल्चर बिल्ड कर दिया, अब आप करना क्या है आपको? अब बंदे हैं, ठीक है, रेडी है, एवरीवन इज गेटिंग इन्वॉल्व इन द काइजन एक्टिविटी, बट नाउ व्हाट वी हैव टू डू? तो स्टार्ट टू ऑर्गेनाइज द इवेंट फोकस्ड ऑन द इम्प्रूविंग स्पेसिफिक एरियाज विद इन द कंपनी। तो उसको इवेंट में कन्वर्ट कर दो, ड्राइव में कन्वर्ट कर दो कि भाई आज मान लो ये असेंबली प्रोसेस है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपटीशन काइंड ऑफ कर दो कि भाई whosoever will do the most top Kaizen contributor so will have a reward। तो क्या होगा, सब में एक कंपटीशन क्रिएट हो जाएगी, लोग आएंगे आगे बढ़ के और काइजन क्रिएट, नंबर ऑफ काइजन करना स्टार्ट कर देंगे। तो अल्टीमेट क्या होगा, अब इसको थोड़ा सा ऐसा लेते हैं, मान लो टोटल उस स्पेसिफिक जोन में 100 काइजन हुए, राइट? तो आई कैन गारंटी यू, आई कैन गिव यू अ गारंटी दैट अराउंड 50 काइजन you will found, you will feel after at least a 50 out of 100, yes, you have a significant improvement on that area, और आपको बेनिफिट दिखेंगे उस एरिया में। आउट ऑफ 150 तो होंगे ही ऐसे जिसका इफेक्ट ज्यादा होगा, मे बी जो हमारे रेस्ट 50 है, डेफिनेटली देयर विल बी अ इम्प्रूवमेंट इन एनी एरिया, एनी प्लेस, जिसका इम्पैक्ट अभी ना दिखे, मे बी लॉन्ग टर्म बाद दिखे, बट होगा। बट 50 ऐसे होंगे जिसका भी इमीडिएट इफेक्ट आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो फर्स्ट क्रिएट द फिलॉसफी, देन एक्शन प्लान की उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कैसे किया जाए, इंप्लीमेंट कैसे किया जाए। इट इज अबाउट द नेचर ऑफ काइजन सिस्टम। टाइप ऑफ काइजन, सो हियर इज टू टाइप ऑफ काइजन। फर्स्ट इज फ्लो काइजन। सो व्हाट इज फ्लो काइजन? इट इज एन बेसिकली सिस्टम काइजन, called as an system kaizen as well. So what does it? It optimizes the flow of production system and perform waste removal activities on the overall value stream. तो इस तरीके के काइजन के लिए काफी सारे टूल हैं, ठीक है, दो टूल आगे बताऊंगा मैं। फिर आ जाता है द प्रोसेस काइजन। सो व्हाट इज प्रोसेस काइजन? This type of Kaizen focus on the removing waste from the individual process. So what is the difference between both? Basically, the flow Kaizen है that optimize the complete manufacturing process or production system. Right? Whatever the wastes are there, so we perform this kind of flow Kaizen at complete manufacturing process, complete production system. But process Kaizen, what we do, like there are 10 processes in any production system at which we are implementing the flow Kaizen. So on each process, if we are doing any active improvement, so that will called process Kaizen. Basically, the set of process Kaizen can make impact as flow Kaizen. I can say in this way as well.
कि आप प्रोसेस काइजन करोगे तो आपको जो फ्लो काइजन के बाद इम्पैक्ट मिलने चाहिए थे वो दिखेंगे, वो भी दिखेंगे। इनफैक्ट ये भी कह सकते हैं कि कुछ चीजें ऐसा है जैसे मटेरियल का फ्लो है, वो आपका इस प्रोसेस काइजन करने से इंप्रूव नहीं होगा। उसके लिए आपको फ्लो काइजन ही करना पड़ेगा अगर आपको मटेरियल फ्लो इंप्रूव करना है। तो इस तरीके से बेसिकली जो हमारे काइजन होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। अब प्रोसेस मतलब ये नहीं है कि मैंने प्रोसेस काइजन बोल दिया तो इसको आप, या फ्लो काइजन मैंने बोल दिया तो इसको आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से जोड़ के लेंगे, नहीं। प्रोसेस तो कुछ भी हो सकता है ना। आप घर पे कोई काम कर रहे हैं, आपका मान लो घर पे कोई बिजनेस है, वो क्या है, वो प्रोसेस है। घर, वो जहाँ पे आप परफॉर्म कर रहे हैं जो एक्टिविटी, ऑफिस में बैठे हैं, आपका सिस्टम है, आपका सराउंड क्या है, वो वर्क जोन, वो एरिया, ठीक है, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, तो वो सब प्रोसेस काइजन में आ जाएंगे। अगर आप स्लाइट इंप्रूवमेंट जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ करते हैं तो ठीक है। तो इसको केवल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से जोड़ के लेना है ऐसा नहीं है। आप लोग बहुत सारे इंप्रूवमेंट डेली लाइफ में करते होंगे तो वो सब काइजन है। अगर आप कोई इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, उसका कुछ बेनिफिट आपको मिल रहा है उस इंप्रूवमेंट का, तो वो सब काइजन है। प्रिंसिपल की बात करते हैं काइजन के। सो देयर आर 10 प्रिंसिपल विच एड्रेस द काइजन माइंडसेट। तो वो 10 प्रिंसिपल क्या है? फर्स्ट इज लेट गो ऑफ एजम्पशन। एजम्पशन मत लगाओ, एजम्पशन छोड़ दो। ये बड़ा की प्रिंसिपल है। ये नहीं है बैठे बैठे ऐसा कर दूंगा तो ऐसा मिल जाएगा, नहीं। जाओ करो और देखो, एजम्पशन मत लगाओ। ठीक है, जरूरी नहीं है वो एजम्पशन आपका करेक्ट हो 100%। प्रिडिक्शन है, हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, until unless you will not try once, right? Be proactive about solving problem। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोएक्टिव बनो। जब प्रोएक्टिव बनोगे, अप्रोच के साथ काम करोगे तो आपका आइडियाज आएंगे माइंड में, क्योंकि आप माइंड अपना अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर कर चुके हो कि ये कोई सर्टेन प्रॉब्लम है, मुझे सॉल्व करनी है। जब इस तरीके से काम करोगे, इस माइंडसेट के साथ काम करोगे, तो आइडियाज खुद से जनरेट होंगे कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो और आगे ना आए उस पर कैसे काम करूं, क्या ऐसा काम करूं जिससे आगे रिपीट ना हो। तो अपने आप से सेल्फ आइडिया जनरेशन होगा आपको। डोंट एक्सेप्ट द स्टेटस क्यू। There are lots of people who say कि what I can do in this thing is going on from long time. Why? It is not necessary कि if anything is going on from long time so that is correct. Maybe you have some better idea. Sure, you should do that. अगर जिसने सेमी ऑटोमेटिक मशीन, वॉशिंग मशीन बनाई थी, प्रोडक्ट पे काम ही नहीं करता, वो कहता अब तो बन गई, अब तो बस इसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो रुक जाता, तो अभी भी वही चल रहा होता, नहीं आती ना फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन। कोई बंदा तो रहा होगा ना जिसने ये फॉलो, थर्ड प्रिंसिपल मैंने बताया, ये फॉलो किया होगा कि जैसे चल रहा है क्यों रहने दूं मैं ऐसा, कुछ अगर अच्छा, इसमें कुछ कमियां हैं, इसको कुछ अच्छा कर सकते तो करो, राइट? डोंट एक्सेप्ट, लेट्स डू वट एवर पॉजिटिव और गुड पॉइंट यू हैव इन योर माइंड, राइट? Then the fourth is let go of perfectionism and take an attitude of iterative adaptive change. So ऐसा मत करो कि जब तक चीजें परफेक्ट नहीं होंगी तब तक हम नहीं करेंगे, राइट? जो अभी करंट कंडीशन है, इफ यू हैव एनी बेटर आइडिया एंड यू थिंक कि at least it is good, what is the idea is in what idea is in my mind, that is good from as compared to current condition, so don't wait for perfectionism, go and implement that idea। कुछ तो कंडीशन इंप्रूव होगी जो हमारी पहले थी, उसको इम्प्लीमेंट कर दो जो भी है, आगे देखेंगे। काइजन वन डे एक्टिविटी नहीं है। हो सकता है आज जो आप काम कर रहे हो वो कल जरूरत के हिसाब से बदलना पड़े,
ऐसा नहीं है ना कि कोई चीज 80s 90s 70s में डेवलप हुई तो वो आज भी फिट होगी, नहीं है ऐसा। पहले हम पहले के जमाने, पहली जो पीढ़ी आती जब हम थे, ठीक है, 90s के जो हैं, तो नहीं चलाना आता था फोन, पता ही नहीं था फोन होता क्या है। आजकल का बच्चा, आप एलकेजी का बच्चा है, आप फोन दोगे आपसे अच्छा चला लेगा वो। क्यों है? स्थिति चेंज हुई, एनवायरनमेंट चेंज हुआ, उसी हिसाब से लोगों ने अपने आप को चेंज किया। तो काइजन भी है, जरूरी नहीं है ना जो 60 साल 70 साल पहले से डेवलप हुआ, इस्टेब्लिश हुआ, वो आज भी चले। आज चीजें अलग हैं, तो हमें भी अलग करना पड़ेगा, अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। तो इट इज व्हाट द फोर्थ प्रिंसिपल इज, वेट मत करो कोई परफेक्ट चीज मिले कि बस उसके बाद फिर चेंज ही ना करना पड़े। जो है पहले वो करो, बट एटलीस्ट कि उसका कुछ बेनिफिट आपको। लुक फॉर द सॉल्यूशन एज यू फाइंड मिस्टेक। अगर आपको कुछ मिस्टेक मिल रही है तो उसके सॉल्यूशन पे काम करो। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि करेक्टिव एक्शन पे काम करते हैं, ठीक है, और फिर लॉन्ग टर्म एक्शन पे, प्रिवेंटिव एक्शन पे काम करना प्रेफर नहीं करते। क्या करेंगे, इशू आया करेक्ट कर दिया, काम खत्म। ऐसा जहां भी आप करोगे या करने की कोशिश करोगे, जब जब करने की कोशिश करोगे, यू कैन नेवर गेट अ रिलैक्सेशन। एवरी टाइम यू विल फेस सेम प्रॉब्लम because you have not worked upon the root cause and its long term action। आपने क्या किया, प्रॉब्लम अकर हुई, ठीक है, आ गई, उसको रिपेयर किया, करेक्टिव एक्शन लिया, खत्म। सॉल्यूशन ढूंढो उसका परमानेंट, या कैसे उसको इंप्रूव कर सकते हैं एट द टाइम भी, ना कि उसको करेक्ट करने के लिए। करेक्शन तो आसान है, बट उसका सॉल्यूशन ज्यादा मैटर करता है, अगर आपको उसके रिपीटिशन को कंट्रोल करना है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम मिले, उसके सॉल्यूशन पे काम करो। सॉल्यूशन करोगे, सॉल्यूशन पे काम करने की कोशिश करोगे, तो खुद से आइडियाज जनरेट होंगे, और वही आइडियाज आपके काइजन है, अगर उसका कुछ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आपके उस प्रॉब्लम को लेके मिलता है तो, या मिस्टेक को लेके मिलता है तो। देन द सिक्स्थ इज क्रिएट एन एनवायरनमेंट इन विच एवरीवन फील्स एम्पावर्ड टू कंट्रीब्यूट। तो यहाँ पे फिलोसफी की बात आ गई। ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दो, सारे लोग सेल्फ मोटिवेटेड हो और इनकरेज्ड हो कि यस, आई हैव टू डू अ काइजन, यस मुझे भी काइजन में कंट्रीब्यूशन करना है, मुझे काइजन इवेंट में कंट्रीब्यूट करना है। इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करो। डोंट एक्सेप्ट द ओबियस इश्यूज, इंस्टेड आस्क व्हाई 5 times to get to the root cause। ठीक है, नॉर्मली चीजों को एक्सेप्ट मत कर लो जो हो रही है, वाइवा एनालिसिस करना जरूरी है उसका रूट कॉज फाइंड करने के लिए। जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया था, करेक्टिव एक्शन करने का काम नहीं चलेगा, वाइवा एनालिसिस जरूरी है। जस्ट कि किसी ने बता दिया इशू आ गया, ठीक है ओके मैं आ रहा हूँ, करेक्टिव एक्शन लिया, खत्म, ऐसा मत करो। कल इंफॉर्मेशन एंड ओपिनियंस फ्रॉम मल्टीपल पीपल, जितनी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, ओपिनियन ले सकते हो लोगों से, लो, अच्छा रहता है। मल्टीपल पीपल, मल्टीपल आइडियाज एंड मल्टीपल सॉल्यूशंस। यूज क्रिएटिविटी टू फाइंड लो कॉस्ट स्मॉल इंप्रूवमेंट। यस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यस, लाइक दो तरीके का काइजन होते हैं, हो सकते हैं लो इन्वेस्टमेंट विद हायर बेनिफिट, हायर इन्वेस्टमेंट विद लोअर बेनिफिट। सिंपल सी बात है, लोअर इन्वेस्टमेंट के साथ हायर बेनिफिट मिल रहे हैं तो वो ज्यादा बेटर होगा ना कि हायर इन्वेस्टमेंट के साथ लोअर बेनिफिट मिले। तो कुछ क्रिएटिव सॉल्यूशन आपको ढूंढने चाहिए लो कॉस्ट ऑटोमेशन करने के लिए। इस तरीके के काइजन ज्यादा बेनिफिशियल रहते हैं, जिसमें आपने एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया, या अगर आपने नॉमिनल इन्वेस्टमेंट किया टू गेट ह्यूज बेनिफिट, इंस्टेड ऑफ कि आपने इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर दी और बेनिफिट उसके कम आए, तो ये काइजन ज्यादा इफेक्टिव नहीं। अवॉइड करो, फाइंड करो कि रिसोर्सेज का यूटिलाइजेस, जो भी आप रिसोर्स यूज कर रहे हो काइजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसके बेनिफिट उसकी कॉस्ट से कहीं ज्यादा होने चाहिए।
देन 10th एंड लास्ट, मैंने पहले भी बोला था, नेवर स्टॉप इम्प्रूविंग, डू नॉट स्टॉप improvement, it should be going on continuously, even on that process at which you have just now have done the kaizen. जैसे मैं बता रहा हूँ, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है जो चीज आज आपने की है वो आगे 10 साल तक चलती रहे। उसमें आगे समय के हिसाब से चेंजेस आएंगे, आइडिया नई नई चीजें आएंगी, नए नए इनोवेशन आएंगे, तो वो आपको कंटिन्यू करना है, स्टॉप नहीं करना है कि इस प्रोसेस में तो काइजन कर दिया, नाउ स्टॉप, नाउ देयर इज नो स्कोप फॉर काइजन, नो, दैट इज रॉन्ग प्रैक्टिस। एवरी टाइम एवरी प्रोसेस हैज a स्कोप ऑफ काइजन, जस्ट हमें माइंडसेट अपना उस हिसाब से लेके चलना है। नाउ वी टॉक अबाउट द काइजन साइकिल, मतलब हाउ टू डू अ काइजन बेसिकली, व्हाट टू डू। सो गेट एम्प्लॉय इन्वॉल्व, जैसे पहले बताया फिलोसफी में, seek the involvement of employees including sociality, soliciting their help in the identifying issues and problems, right? And the second is find the problem, using widespread feedback from all the employees, gather a list of problem and potential opportunities। ठीक है, फीडबैक हो गई, और क्या कर सकते हैं, मान लो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रहा है तो उसमें जो डिफेक्ट आ रहे हैं, मल्टीपल डिफेक्ट है, तो पैरेटो बना लो, देख लो कौन सा टॉप डिफेक्ट है, क्यों है, उसका रूट कॉज आइडेंटिफाई करो, जाके देखो क्या काइजन कर सकते हैं, जिससे क्या कोई काइजन का स्कोप है जिससे थोड़ा सा वो रिजेक्शन कम हो। प्रॉब्लम फाइंड हो गई, राइट, देन क्रिएट अ सॉल्यूशन, encourage employees to offer creative solution with all manner of idea encouraged, pick a winning solution or solution from the ideas presented। तो CFT अप्रोच के साथ आप काम करोगे, मान लो कोई एक इशू, आप प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई कर ली, एक टीम है, CFT है, क्रॉस फंक्शनल टीम, ठीक है, मल्टीपल पीपल आर देयर, तो आपने उनके साथ मिलकर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, अब उन्हीं सारे बंदों से जो एम्प्लॉयज है उनसे बोलो कि भाई ठीक है प्रॉब्लम मिल गई, सॉल्यूशन बताओ। मे भी हो सकता है कुछ लोग बड़े फनी सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको नोट डाउन करो, ठीक है, हो सकता नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपके पास होंगे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आई कैन डैम श्योर कि there will be a solution, few solution which will definitely resolve or improve this problems what you have got here। तो सॉल्यूशन क्रिएट करो, उसके बाद सॉल्यूशन मिल गया, देन टेस्ट द सॉल्यूशन, टेस्टिंग भी जरूरी है ना, सॉल्यूशन तो दे दिए, कितनी इफेक्टिव है, पॉसिबल भी है नहीं है, फिजिबल भी है नहीं है, तो इम्प्लीमेंट द विनिंग सॉल्यूशन, chosen ever with everyone participating in the rollout, then analyze the result, टेस्ट किया, रिजल्ट एनालाइज करो, कौन सा सॉल्यूशन कितना इफेक्टिव है, जितना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं या जो उसको इम्प्लीमेंट करने में आउटकम उस लेवल का है या नहीं है, एनालाइज करो रिजल्ट, देन इफ रिजल्ट आर पॉजिटिव देन अडॉप्ट द सॉल्यूशन थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन, हॉरिजॉन्टली डिप्लॉय कर दो उसको अगर पॉजिटिव है रिजल्ट, बाकी सारे प्रोसेसेस में भी जो उसके सिमिलर है। So these 7 steps should be repeated on an ongoing basis with the new solution tested where appropriate or new list of problem tackled। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपका लास्ट स्टेप है, जो आपने स्टेप किए हैं ये करने के बाद रुकना नहीं है, फिर रिपीट करो, फिर देखो और नई प्रॉब्लम क्या है, अब टॉप इशू कौन सा हो गया, क्योंकि जो आपने जिस पे एक्शन ले लिया वो तो कंट्रोल हो जाएगा ना, इंप्रूव हो जाएगा 1 महीने बाद, तो जो अब टॉप इश्यूज आएंगे वो कुछ और होंगे, ये सॉल्यूशन क्या है, फिर यही इंप्लीमेंट करो। तो इसी तरीके से काइजन की एक्टिविटी हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं भी किसी भी प्लेस में, रुकना नहीं है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, सॉल्व करो, फिर नई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, फिर सॉल्व करो, फिर नई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, फिर सॉल्व करो, चलता रहना चाहिए काइजन साइकिल, इस तरीके से होती है इसकी। एक एडिशनल अप्रोच और है, व्हाट इज इट, दैट इज PDCA, plan do check act, so it is also known as Skew chart cycle or Deming cycle। what is it,
let's discuss upon this, the procedure of this. So here also the same procedure. First plan, recognize an opportunity and plan a change. अपॉर्चुनिटी को ढूंढो, उसका चेंज कैसे करना है उसको प्लान करो, ठीक है। फिर वही आ गया, टेस्ट करो एक छोटे लेवल पे, किसी एक प्रोसेस पे एक लाइन इंस्टेड ऑफ की इंप्लीमेंट कर दो हॉरिजॉन्टली, टेस्ट करो उसको। देन रिव्यू द टेस्ट, एनालाइज द रिजल्ट। सेम है, बस क्या है वो 7 स्टेप में ये चीज हो रही है, 4 स्टेप में खत्म हो जाएगी। रिव्यू द टेस्ट, एनालाइज द रिजल्ट, आइडेंटिफाई व्हाट यू हैव लर्न, देन take action based on what you have learned in the study step. So ये भी है। So before going to the benefit of Kaizen, I will tell you few more कैसे कर सकते हैं। लाइक प्रोसेस फ्लो, अगर मैंने बताया था 2 तरह के काइजन होते हैं, प्रोसेस फ्लो और आपका प्रोसेस काइजन और फ्लो काइजन। तो फ्लो काइजन के लिए वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग कर सकते हैं आप, लीन मैन्युफैक्चरिंग, उसके और सब कंपोनेंट वीएसएम हो गया या अदर कॉन्सेप्ट हो गए, ठीक है, फ्लो काइजन के लिए। तो वीएसएम क्या है या लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या है, इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे, लंबा टॉपिक है, आगे बताऊंगा मैं आपको। ये भी एक मेथोडोलॉजी, 5S इटसेल्फ हेल्प करता है आपको काइजन में। 5S करोगे तो आपको इम्पैक्ट दिखेगा। 5S कहाँ करना है ये आपको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपनी एक वीडियो में, तो आप वो जाके देख सकते हैं, चैनल पे पड़ी हुई है। नाउ वी हैव डिस्कस एवरीथिंग कि व्हाट इज काइजन, how it look like in real life example, right? How many type of kaizen are there, how to do it, what are the nature of kaizen, everything we have learned. Now the time is to know what kind of benefit we get from kaizen. So I will try to link it to what we have learned so far. So generate the staff satisfaction, सिंपल है। कोई ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी चीजें मैसअप हो रखी थी वहां मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को लेके, सिस्टम को लेके, तो वहां पे क्या की इवेंट स्टार्ट किए, एम्प्लॉयज को इनकरेज किया, जो भी प्रॉब्लम थी उन सबको ढूंढा, सॉर्ट आउट किया। तो प्रॉब्लम ही जो एक रेशियो है, मान लो पहले 100 ऑफ प्रॉब्लम्स थी एक ऑर्गेनाइजेशन में, अब वो काइजन कर करके 10 पे ले आए। क्या होगा, स्टाफ सेटिस्फेक्शन इंप्रूव होगा, जो डिससेटिस्फैक्शन नेगेटिव इन्वायरमेंट था वो रिड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव इन्वायरमेंट हो जाएगा, वहाँ पॉजिटिव होगा तो सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगा। स्ट्रेंथन द एम्प्लॉय लॉयलिटी, लॉयलिटी भी ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथन हो जाएगी। रिडक्शन इज स्टाफ टर्नओवर, सिंपल है, सेटिस्फेक्शन, आप जॉब कर रहे हो और आप अपनी जॉब से फुल्ली जो आपके एस्पेक्ट हैं कंपनी से लेके, आपकी जॉब से लेके, वो आपके फुलफिल हो रहे हैं, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप क्यों छोड़ के किसी ऑर्गेनाइजेशन को जाओगे, तो जो आपका रिडक्शन है वो कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैंने बताया ही आपको, ऑफ कोर्स इट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। ग्रेटर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, यस ऑफ कोर्स इट इज लिंक्ड। अगर ऊपर की सारी चीजें रहेंगी, जो एम्प्लॉय है, स्टाफ है, वो फुल्ली सेटिस्फाइड है, तो सिंपल से सेल्फ मोटिवेटेड होकर काम करेगा, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा ये सारी चीजों को, तो इन सारी चीजों का इम्पैक्ट आएगा कि जो इफिशिएंसी है वो आप होगी, प्रोडक्टिविटी है वो आप होगी। तो जब प्रोडक्टिविटी इफिशिएंसी अप होगी, एक प्रोसेस था पहले 12 घंटे थी मशीन, 12 घंटे रन करनी चाहिए थी, ठीक है, देयर वर सेवरल फैक्टर की दैट मशीन रन नहीं कर पा रही थी, ठीक है, काइजन किए, स्मॉल काइजन किए, पहले 10 में से 4 ही घंटे के रन कर पा रही थी। नाउ द टाइम इज आफ्टर implementing lots of kaizen, what we have observed, now machine is running around 7 to 8 hours out of 12 hours. So what will get the cost, manufacturing cost automatically will reduce, क्योंकि जो अब हम इनपुट कर रहे हैं वो सारा आउटपुट में कन्वर्ट हो जा रहा है। पहले क्या हो रहा था, जो जितना हम इनपुट कर रहे थे वो आधा वेस्ट में कन्वर्ट हो जा रहा था। हमने काइजन इंप्लीमेंट किए, काइजन ड्राइव वहां पे चालू की, स्टार्ट की, तो उसका इम्पैक्ट ये आया कि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो रिड्यूस हो गई। देन अब
प्रॉब्लम को आप इन टाइम सॉल्व करोगे, आपका जो एम्प्लॉई है वो इंकरेज्ड, सेल्फ मोटिवेटेड है, ठीक है, काइजन करने के लिए, प्रॉब्लम आ रही है इन टाइम सॉल्व कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होगा? आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी तो आपका कस्टमर सेटिस्फाई होगा. So these are the benefit, and there are many benefit for the Kaizen, but you have to understand the importance. If you will start to implement it, then I can assure you you will definitely get a benefit, and many benefit you will get, not only this which I have listed here, right? So go and start to do the Kaizen in your area, no matter where you are, at your home, at your office, at your workplace, anywhere ever you are. Go and implement. Check, there will be a lot of problem where you can do have, you can have some better solution as compared to current situation. So मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको बताया था कि I will not talk about only the Kaizen. So there will be few other methodology which I will discuss along with the Kaizen. So what are those? That is Kaikaku and Kakushin. ये क्या है? ये भी काइजन है, हम कह सकते हैं एक तरीके से एडवांस वर्जन बोल दो उनको, या एक तरीके से कॉम्पिटिटिव मेथोडोलॉजी बोल दो. तरीका इनको करने का अलग होगा बट आउटकम सेम होगा, चेंज फॉर बेटर. तो वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया. तो कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड. जो लोग नए आए हैं सब्सक्राइब करो चैनल को, जिससे कि जब मैं इन दोनों के बारे में वीडियो आपको डिलीवर करूं तो आपके पास अपडेट पहुंच जाए, राइट? तो अगर जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इनको इनके बारे में होगी, और मैं उसको कंपैरिजन भी एक आपके साथ शेयर करूंगा कि वो हाउ इट इज डिफर विद द काइजन, राइट? सो थैंक यू एवरीवन गाइस, थैंक यू सो मच.